Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to cover new topic of chapter 6, staffing, that is recruitment. The meaning, demerits and types of recruitment I am explaining in this lecture. In my last lecture, I have started staffing chapter. Manpower planning I have explained in that chapter. Now, the first step of staffing process is recruitment. Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in the organization. In general words, recruitment means search for a candidate who can perform the vacant roles and inducing them to apply and come forward. Sources of recruitment क्या हो गया बेटा? Recruitment is inviting application for the vacant job position. Recruitment is just the process in which only the more and more candidates are induced and attracted to apply for the vacant job position in the organization. Recruitment बहुत important है बेटा, because the end result of the recruitment function is receiving large number of applications to make selection form. ठीक है, तो sources of recruitment, there are two main sources of recruitment, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. ये दो सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के बेटा, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स. अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है? Whenever any candidate is selected within the organization to fill the vacant job position, it is called internal source of recruitment. Under internal source of recruitment beta, the vacant job positions are filled by inducing the existing employees of the organization. ठीक है, और फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डीलिंग करी जाती है, उन्हीं के थ्रू वैकेंट जॉब पोजीशन फिल होती है. और इसके जो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनल सोर्स. नंबर 1, ट्रांसफ़र. फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है दैट इज़ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र मीन्स shifting of an employee from one job to another, from one department to another, or from one shift to another shift, that is called transfer. ट्रांसफ़र क्या होता है बेटा? ट्रांसफ़र मीन शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी. Generally with the transfer there is no change in the compensation level and authority level of the employees. There is no change even in his rank, responsibilities and prestige. Only the place of working is changed. ठीक है, जैसे ट्रांसफ़र कर दिया क्लर्क का फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र. नंबर 2, प्रमोशन. It refers to shifting an employee to a higher position, carrying higher responsibilities, prestige, facilities and pay. प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन में हम एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं हायर पोजीशन पे, हायर अथॉरिटी लेवल पे, और जनरली प्रमोशन में सैलरी का इंक्रीमेंट भी होता है. फॉर एग्जांपल, प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंटेंट पोस्ट. थर्ड इज़ ले ऑफ. ले ऑफ में जब हम टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ को वर्क नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ, और जब उन्हें सेपरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, एंड व्हेनेवर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, हम इन्हें कॉल बैक कर देते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ. ये 3 सोर्सेज थे इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेटा, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स, एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. क्यों? क्योंकि जो इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इसमें एम्प्लॉय क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं ताकि अपनी परफॉर्मेंस उनकी इंप्रूव होती है. इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सेलेक्शन एंड प्लेसमेंट. नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय. फिलिंग ऑफ जॉब इंटरनली इज चीपर देन एक्सटर्नल सोर्स. But there are some limitations also. Number 1, the scope for induction of fresh talent is reduced. There is no scope for fresh talent in the organization. There is wider choice through external source of recruitment, which is not there in internal source. The spirit of competition among the employees may be hampered also. Frequent transfer of employees may often reduce the productivity of the organization. Now see beta, external source of recruitment. When the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external source of recruitment. External source of recruitment क्या है बेटा? जब हम कैंडिडेट्स को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल करते हैं ताकि वो वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सकें, then it is called external source. In other words, when the organization meets its manpower requirement from outside the organization, then it is called external source. Whenever large number of job positions are vacant, then external recruitment is preferred. इसका सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स या कॉमन मेथड्स हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के. नंबर 1, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेज नोटिस ऑन द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री और वर्कशॉप स्टेटिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन. द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब वर्क फॉर द इंटरव्यू. दिस मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस लाइक स्वीपर, पियोन एक्सेट्रा. ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जनरली आपका जो है लोअर लेवल ऑफ जॉब के लिए, जहाँ पे हम नोटिस लगा देते हैं गेट पर, फैक्ट्री गेट पे, और वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं. तो आपके जो पियोन्स हैं, स्वीपर्स हैं, इनकी वैकेंसीज कंप्लीट करने के लिए, हम फुलफिल करने के लिए वी यूज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट.
Number 2, casual callers. Many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicant in their office. This list can be used for recruitment. कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं बेटा कि जब भी आपका जॉब सीकर्स की एप्लीकेशन पेंडिंग होती है इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन उसको जो है जो लास्ट ईयर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो उनकी एक एप्लीकेशन फाइल मेंटेन हो जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जब भी आपको कोई जो वेटिंग लिस्ट में एप्लीकेशन फाइल में कैंडिडेट्स को रख दिया जाता है, और व्हेन देयर इज एनी वैकेंसी देन द सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट आर called. That is called casual callers. Number 3, advertisement. Most common and popular method of external recruitment is advertising about the vacant job position. The organization select the media of advertisement keeping in mind the requirement of the job position. ठीक है, तो इसमें जनरली आपके न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट में, रेडियो, टेलीविजन पर वैकेंसीज़ को हाईलाइट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट. अब इसका नेक्स्ट देखिए बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब. Government employment exchange act as a middleman between the job seeker and the organization who have vacant job position. The job seekers leave their biodata and detail of their qualification with the employment exchange, and when the organization approach employment exchanges, the suitable candidates are sent. इज़ इट क्लियर? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मिडल मैन है, और जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो एक सुटेबल कैंडिडेट को सेंड कर देता है. कैंपस रिक्रूटमेंट, ये भी आपका मोस्ट कॉमन मेथड है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीनियर्स मैनेजर्स हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोफेशनल कॉलेजेस जाते हैं, विजिट करते हैं, और वहाँ से फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेकर आते हैं विद लेटेस्ट टेक्निकल नो हाउ. दिस टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ मोर कॉमन फॉर इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, MBAs, etc. The organization prefer fresh graduate because they can be molded according to the requirement of the organization. Then recommendation from present employer. Many firms encourage their employees to recommend their names, the names of the relatives, friends and other known people to fill the vacant job position. The organization prefer recommendation by trusting the goodwill of the present employee, and the organization can catch hold of the existing employee if there is any type of problem. देखो रिकमेंडेशन क्या होता है इसमें कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वही अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेकर आते हैं, उनका नेम देते हैं टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन. ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के ट्रस्ट पर जो है वो चेक करता है, कैच करता है, और वो जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो न्यू एम्प्लॉय अगर कोई प्रॉब्लम करता है तो वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को कॉल करते हैं जिन्होंने रिकमेंड किया था. 7th, लेबर कॉन्ट्रैक्टर. ये जनरली आपके लोअर लेवल ऑफ जॉब लेबर्स के लिए होती है. जो जॉबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो कीप इन टच रहते हैं विद द लेबर्स इन द विलेजेस एंड रूरल एरियाज, एंड वेन एवर देर इज़ वैकेंसी और रिक्वायरमेंट फॉर लेबर इन फैक्ट्री और इन द कंस्ट्रक्शन साइट, दे ब्रिंग द लेबर फ्रॉम विलेजेस एंड सप्लाई टू द बिजनेसमैन. ठीक है, तो द जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है कमीशन चार्ज करते हैं इसके लिए. ये सुटेबल मेथड है फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए. लेबर कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबर एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर at short notice. Then merits of external source. Number 1, qualified person. हमें external source of recruitment के थ्रू qualified person मिलते हैं, trained person मिलते हैं to fulfill the vacant job position. Number 2, wider choice. The management has a wider choice in selecting the people for employment. Fresh talent, it provides wider choice and brings new blood in the organization. क्योंकि इसमें बाहर के सोर्सेज से आते हैं रिक्रूटमेंट, तो ये आपका जो है न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन आते हैं. कॉम्पिटेटिव स्पिरिट. इफ़ द कंपनी टैप एक्सटर्नल सोर्सेज, द स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स. लिमिटेशंस भी होती है कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की बेटा. नंबर 1, डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड में कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. दे मे फील दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड. कॉस्टली प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपका पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं. लेंदी प्रोसेस है क्योंकि मोर टाइम कंज्यूमिंग है देन द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. I hope you all understand external and internal source of recruitment. Note down all the work properly in your copy. Thank you beta. Have a nice day.